Hello viewers, welcome once again to the YouTube channel Wishipedia The Knowledge Junction. We will continue from where we left in the episode 1 of Indian presidential election complete process. Let's recap what we have seen in the episode 1 of the video. We came to know that the process of election of president is different from any other election in India. We came to know about the qualification and eligibility for president, the process for filing of nomination, and the formation of electoral college and how many electors are there in the presidential electoral college. हमने अब तक जाना कि राष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया किसी अन्य चुनाव से बिल्कुल अलग है। हमने इस पद की योग्यता क्या होनी चाहिए ये जाना, नामांकन किस प्रकार से होता है ये दिखा, और इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा कौन कौन होते हैं और राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कुल कितने सदस्य हैं। अब जानते हैं आगे की प्रक्रिया। Now the question arises whether the value of votes of MP is equal to the value of MLA or not. क्या एक सांसद के मत का मूल्य एक विधायक के मत के बराबर होता है, कहीं ज़्यादा होता है या कम। In India we use the weightage of votes of the electoral college. The weightage of the votes of total MP are almost equal to the votes of the total MLAs. संसद में कुल सदस्यों के मतों का मूल्य विधायकों के कुल मतों के मूल्य के करीब करीब बराबर होता है। Weighing of electoral college votes. The value of votes cast by elected members of state legislative assemblies and both houses of parliaments are determined by the provisions of Article 55(2) of the Constitution of India. For this purpose, the population of states and union territories as per the census of 1971 is used and will continue to be used till the year 2026. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55(2) में इसका प्रावधान किया गया है। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या आधार होती है। वर्तमान में सन 1971 के सेंसस को मानक बनाया गया है और यह सन 2026 तक मान्य होगा। There is a formula to determine the weightage of votes held by MLA. We have to consider the total population of a particular state or union territory, and that has to be divided by the total number of elected members of the particular legislative assembly to be multiplied by 1000. एक विधायक के मतों का मूल्य जानने के लिए उस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की कुल जनसंख्या में उस विधानसभा के निर्वाचित होने वाले सदस्यों की कुल संख्या को 1000 से गुणा करके भाग लगा देते हैं, तो उस विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य पता चल जाएगा। फिर उसे उस विधानसभा के कुल सदस्यों से गुणा कर लें तो उस राज्य के कुल मतों का मूल्य पता लग जाएगा। Total value of votes of all the 31 state legislative assembly is 5,49,495. सभी 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल मतों की संख्या है 5,49,495। The value of member of parliament's vote is calculated by dividing the total value of all elected members of state legislative assemblies votes by the number of elected members of parliament. संसद सदस्यों के मतों का मूल्य जानने के लिए हम राज्यों की विधानसभा के कुल मतों में कुल सांसदों की संख्या का भाग लगा देंगे। Total sum of value of votes of elected members of state legislative assemblies is 5,49,495. Total number of members of parliament are 776. If we divide 549,495 with 776, the answer will be 708 in round figures. वर्तमान में एक सांसद के मत का मूल्य 708 है। If we multiply 708 to the number of elected members of parliament, that is 776, we will get the total value of MP's vote, that is 5,49,408. प्रत्येक सांसद के मतों के मूल्य 708 को सभी 776 सांसदों से गुणा करने पर संसद के कुल मतों का मूल्य पता चल जाएगा, जो वर्तमान में 5,49,408 है। Total value of number of votes for presidential election is 10,98,903. राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज के कुल 4,896 सदस्यों का मूल्य है 10,98,903. Pattern of casting of votes. In presidential election of India, preferential voting pattern is used by electors. They have to give preference amongst the candidates.
भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में वरीयता के आधार पर मतदान किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य प्रत्याशियों को वरीयता के रूप में मत देते हैं। The candidate received more than 50% of the first preference vote will be declared winner. जिस प्रत्याशी को 50% से ज़्यादा प्रथम वरीयता के मत मिल जाते हैं वह विजयी घोषित किया जाता है। But if none of the candidate able to secure more than 50% of the first preference vote, in that case, the candidate who has secured the least amount of first preference vote will be eliminated and his votes will be transferred to the other candidates in the preference of the votes cast state. जैसा हमने पढ़ा कि जिस प्रत्याशी को 50% से ज़्यादा प्रथम वरीयता के मत मिल जाएंगे वह विजयी घोषित हो जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रत्याशी को 50% से ज़्यादा प्रथम वरीयता के मत न मिले तब क्या किया जाएगा? ऐसी परिस्थिति में जिस प्रत्याशी को सबसे कम प्रथम वरीयता के मत मिले होते हैं उसे चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। उसे मिले मतों को बाकी अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है। इन मतों को बांटने का एक नियम है। उसे मिले मतों में दूसरी वरीयता के मत जिससे दिए होते हैं वह मत उस प्रत्याशी के हिस्से में जोड़ दिए जाते हैं और यह प्रक्रिया जब तक जारी रहती है जब तक कि किसी प्रत्याशी को 50% से अधिक मत न मिल जाए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 3 प्रत्याशियों ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और तीनों में से किसी को भी प्रथम वरीयता के 50% मत नहीं मिले। पहले प्रत्याशी को 45% प्रथम वरीयता के मत मिले, दूसरे प्रत्याशी को 40% और तीसरे प्रत्याशी को 15% मत मिले। तो इसी परिस्थिति में जिसको सबसे कम मत मिले तीसरे प्रत्याशी को उसको चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और उसको मिले 15% मतों को दोनों अन्य प्रत्याशियों में जोड़ दिया जाएगा। उसके लिए सेकंड प्रेफरेंस वोट्स को देखा जाएगा। मान लीजिए उसके मिले मतों में 10% दूसरी वरीयता के मत प्रथम प्रत्याशी को मिले और 5% दूसरी वरीयता के मत दूसरे प्रत्याशी को मिले। तो ऐसी परिस्थिति में पहले प्रत्याशी के मत अब 45% खुद के और 10% जो दूसरी वरीयता के मत ट्रांसफर होकर आए हैं तो उसकी संख्या 55 हो जाएगी, 55% हो जाएगी और दूसरे कैंडिडेट के मतों की संख्या खुद के 40% और 5% ट्रांसफर होकर के आए तो उसके मतों की संख्या 45% रह जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में पहले प्रत्याशी के 50% से अधिक मत मिलने से उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसी परिस्थिति सिर्फ एक बार आई है। जब 5वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तब श्रीमान वीवी गिरी को 50% से ज़्यादा मत नहीं मिले थे तो उन्हें दूसरी वरीयता के मतों को जोड़ करके विजयी घोषित किया गया था। The Chief Justice of Supreme Court of India administer oath to the President of India in the Central Hall of the Parliament. राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर भारत की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। यह समारोह संसद के केंद्रीय कक्ष में होता है। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उनके पद संभालने से 5 वर्ष का होता है। आगामी 18 जुलाई 2022 को भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। इस बार 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की साझा प्रत्याशी है द्रौपदी मुर्मू और संयुक्त विपक्ष के साझा प्रत्याशी हैं यशवंत सिन्हा। दोनों प्रत्याशियों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसे आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।